ओके, हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ ई सेल्स किए थे, करेक्ट? Yes, sir. ओके, नाउ लिसन, हम क्या करते हैं, we'll electro 3. Okay, now in this today's topic, right, what we'll be doing three things per se. ठीक है, क्या क्या करना है? पहला, product of electrolysis. How we have to figure out the product of electrolysis. ठीक है, and what is electrolysis? Second thing, how to calculate conductivity of a solution. तीसरा टॉपिक जो आज हम करेंगे, that is your how to calculate exact E naught of cell experimentally, right? And then secondary standards. Something about corrosion, right? And that's it. Understood? And yeah, some standard cells. Primary standard cells and secondary standard cells. ये हम लोगों को करना है, ठीक है? Now listen. First, we'll start with the electrolysis. Now, what is electrolysis and how to find out the product of electrolysis, right? It is the discharge of electrolyte on passing current through the solution. सॉल्यूशन के अंदर जब हम करंट पास करते हैं, तब एनोड और कैथोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, उस चीज को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, राइट? So I have taken electrodes connected with external EMF, and inside this I have taken a solution containing electrolyte. Right? First and foremost thing, products obtained at cathode. Wait a second. Give me a minute, guys.
Now listen. Guys, am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. पहला है कि types of electrodes, right? There are two types of electrodes, namely reactive and non-reactive electrodes. Reactive, non-reactive electrode क्या होगा? Carbon, steel, graphite, iridium, platinum, tungsten. These are the electrodes which will not take participation in a cell reaction. Getting my point? Yes, sir. रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. एग्जांपल एनी अदर मेटल इलेक्ट्रोड. जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एक्सेट्रा. Understood? Yes. I want to write down these examples. लिख लिया एग्जाम्पल्स? No, sir. लिख लो. Okay. Product at cathode. Irrespective of cathode, irrespective of the nature of electrode, the metal cation, which is present in the solution, according to its E naught value, will undergo reduction. That is
Hey, what is that electrochemical? चलो लेके 12 श्री का नाम मांगे अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है. After that we have copper, silver, gold. Last is fluorine, right? Between copper and silver I have iodine and mercury. Between silver and gold I have bromine, oxygen and chlorine, right? So this is the way I told you to remember this electrochemical series. Now understand one thing. Lithium जो है ना, that will be in equilibrium with Li plus. Potassium K plus. Barium 2 plus. Strontium 2 plus. Calcium 2 plus. Sodium plus. Magnesium Mg2 plus. Aluminium Al3 plus. Manganese Mn2 plus. Zinc Zn2 plus. Chromium iron 2 plus. Cadmium 2 plus. Cobalt 2 plus. Nickel 2 plus. Tin 2 plus. Lead 2 plus. Your H plus will be in equilibrium with hydrogen gas. Copper is in equilibrium with copper 2 plus. I with I minus. Mercury with mercurius. That is Hg plus. Ag with Ag plus. Br with Br minus. Cl minus. Gold with gold 3 plus. And fluorine with F minus. So these are the ions with which these elements are in. बताओ अगर रिडक्शन होना है तो कौन रिडक्शन करेगा. सपोज करो मेरे पास CD है और CD2 प्लस है, तो इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा. अगर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ तो CD2 plus. कैडमियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कैडमियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. Cadmium 2 plus. या कैडमियम 2 प्लस का रिडक्शन होगा, राइट. अच्छा अगर मैंने बोला फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी F माइनस, Fluorine. ऑब्वियसली फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. F माइनस को ऑलरेडी रिड्यूस प्रोडक्ट है उसका, राइट. Yes, sir. है ना. Yes. चले आगे. तो एक बात बताओ, पॉइंट नंबर 2, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2, अगर सपोज करो एक्वस सॉल्यूशन है SR2 प्लस का, तो मैंने सपोज करो एक्वस सॉल्यूशन लिया SR2 प्लस का, तो एक बात बताओ मेरे पास वाटर भी है और SR2 प्लस भी है, तो तुम मुझे बताओ कि रिडक्शन होगा किसका. वाटर का रिडक्शन होगा कि SR2 प्लस का रिडक्शन होगा. जो चीज नीचे एग्जिस्ट करती है उसका रिडक्शन होगा कि उसका ऑक्सीडेशन होगा. बताओ. SR जो है वो वाटर से ऊपर है, जैसे हम नीचे जाते हैं तो उसका रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ता ही कम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर. नीचे जाने पे हेलो, नीचे जाने पे बढ़ता है कि कम होता है रिडक्शन टेंडेंसी. SR2 प्लस का रिडक्शन होगा कि वाटर का रिडक्शन होगा.
अरे नीचे जाने पर रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ता है कि कम होता है? देखो जितना नीचे के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उतना रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ई नॉट वैल्यू, अगर मेरे पास Sr2+ है और वाटर है, एंड वाटर जो है वो Sr2+ से नीचे आता है, तो किसका रिडक्शन होता है? Water. वाटर का। नाउ अंडरस्टैंड दैट तो मुझे एक बात बता, वाटर का रिडक्शन में वाटर क्या करेगा? H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि क्या होगा? वाटर में कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H+ या OH? या तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, so I'll be getting H+ will gain that electron, I'll be getting half hydrogen gas plus OH minus. Agreed? Yes. Yeah. तो एक काम करना कि पहले ये चेक करना तो कैटआयन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर कैटआयन वाटर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लीज वाटर को रिड्यूस करवाना, और अगर कैटआयन वाटर से नीचे एग्जिस्ट कर रहा है तो कैटआयन को रिड्यूस करवाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला तुम्हारे पास एक्वस Pb2+ सॉल्यूशन है, मतलब वाटर भी है और lead2+ भी है, और अब मुझे बताओ किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे, वाटर का रिडक्शन होगा कि Pb2+ का रिडक्शन होगा? Pb2+. वेरी गुड। दो इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड बनाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोलिसिस। ई नॉट वैल्यू पे सारी चीजें डिपेंड करेंगे। गेटिंग इट? Yes. अंडरस्टूड? या मोल्टन है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी वाटर कंटेंट ओवर देयर, बट एक एक्सेप्शन है, ठीक है? अब तीसरी चीज, इन केस ऑफ mercury electrode that is cathode, and if aqueous is present, that means you have Na plus and water. So I know that here, in spite of having less E naught value, aqueous, in spite of having less E naught value, still undergo reduction due to high affinity of Hg towards alkali metal। होता क्या है, जैसे ही सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट बिकम सोडियम, एंड जब सोडियम मर्करी के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म सोडियम अमालगम, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत Na+ फेवर करता है बहुत ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये एक एक्सेप्शन है जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो आई गेस इतने तीनों पॉइंट्स समझ में आगे तुम लोगों की हाउ टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट्स एट कैथोड, राइट? Yes, sir. चलें आगे। Yes.
Now products at anode. अब प्रोडक्ट्स कैसे देखोगे एनोड के अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। द anion will lose पहले काम करो, in case of नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। पहला केस है नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लैटिनम हो गया, इरिडियम हो गया, ठीक है, स्टील हो गया। तो उस केस के अंदर दे आर नोन एज नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन के अंदर। ना उस केस के अंदर क्या होगा, द एनियन which has high tendency will lose electron and will get discharged at anode. Got it? Now understand होगा क्या, मैं कुछ एनियॉन्स लिख देता हूँ। RCO माइनस का रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है OH माइनस से, OH माइनस का ज्यादा होता है वाटर से, ठीक है। आई विल डू वन थिंग, RCO माइनस है, ठीक है, एंड देन यू हैव लेट्स से I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, देन OH माइनस, देन वाटर। वाटर का ज्यादा हो गया नाइट्रेट से, नाइट्रेट का ज्यादा हो गया सल्फेट से, सल्फेट का ज्यादा हो गया फॉस्फेट से। तो मतलब देखा जाए वाटर की प्रेजेंस में अगर ये तीनों आयन अवेलेबल हैं तो इनके साथ कुछ नहीं होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। और वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1+1 होता है, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन एज इट इज आ जाएगा H+, एंड ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। तो अगर ये आयन्स अवेलेबल हैं, दैट इज नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट, तो वाटर को ऑक्सीडाइज कराओ, अदरवाइज हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कराओ। एंड लिसन, F- नहीं करता ऑक्सीडाइज बिकॉज़ उसका रिडक्शन टेंडेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो फ्लोरीन का रिडक्शन टेंडेंसी अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो F- का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने ये किया Cl- और वाटर के केस के अंदर किसका Cl- और वाटर, Cl- का रिडक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। पता है क्या, Cl- जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फॉर्म Cl2 एन इलेक्ट्रॉन। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फॉर्म H+ प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यार E0 वैल्यूज चेक करो, E0 वैल्यूज के केस के अंदर तुम्हारे पास ब्रोमीन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन का रिडक्शन टेंडेंसी ऑक्सीजन की रिडक्शन टेंडेंसी से ज्यादा है। देखा जाए तो E0 ऑफ -2 Cl2, sorry, E0 of Cl2 to Cl- reduction tendency is more than E0 of water to oxygen. Getting it? Or oxygen to E0 of oxygen to water. यार एक बात बताओ, मैंने तुमसे ये बोला कि किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, क्लोरीन का कि ऑक्सीजन का?
क्या गाइस, किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, क्लोरीन का कि वाटर का? Chlorine. हाँ, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का। तो यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन में क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, इस बैकवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन की? पहले वाले रिएक्शन की या दूसरे वाले रिएक्शन की? बैकवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का, बैकवर्ड रिएक्शन में क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। अगर क्लोरीन का रिडक्शन टेंडेंसी ऑक्सीजन के रिडक्शन टेंडेंसी से ज्यादा है, तो एक बात बताओ, किसका बैकवर्ड टेंडेंसी ज्यादा होगा, रिएक्शन नंबर 1 का या रिएक्शन नंबर 2 का? 1. 1 का। तो फॉरवर्ड टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा? 2. 2 का। बट उसके बावजूद ना, Cl माइनस जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो Cl माइनस का ही ऑक्सीडेशन करवाते हो, ऐसा क्यों? ओवर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? ओवर पोटेंशियल, राइट? आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। If Cl minus and water both are present, then Cl minus will undergo oxidation in spite of having high due to over potential. Over potential is the extra voltage which is required to change the phase of the substance. For example, Cl minus aqueous है, मुझे तो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है। वाटर aqueous है, मुझे इसको ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करना है। ओवर पोटेंशियल of water is more than for Cl minus. That is why Cl minus will undergo oxidation. समझ में आई बात? Yes, sir. देख लो उसको।
लिख लिया? नो सर। हाँ, next point, I know that water has more oxidation tendency than sulfate. But concentrated sulfate have more oxidation potential than water. होगा क्या, जब concentrated sulfate होगा ना, तो water का oxidation मत करवाना, सल्फेट लेना, उसमें से जो ऑक्सीजन है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो दो सल्फेट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म पेरोक्सो सल्फेट, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 हो जाता है, एंड क्या होगा तुम्हारा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सल्फेट विल कन्वर्ट इनटू पेरोक्सो डाइसल्फेट। इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +6 ही रहता है, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 से -1 आता है, ये पेरोक्सिल लिंकेज आ जाता है उसके अंदर, इसे पेरोक्सो डाइसल्फेट बोलते हैं। इट्स हैपन इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट आयन। अंडरस्टूड? यस सर। ग्रेट, लिख लिया? सर लिख नहीं रहा। क्या कह रहे हो? इसे लिख लो। हाँ, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें इसका थ्योरी चाहिए होगा। सही बोल रहा हूँ, इस थ्योरी को लिख लो ताकि क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ। डन? यस Okay. सर। Now listen. If in case of reactive anode, the anode, the metal rod, which is acting as anode, will undergo oxidation irrespective of its E0 value. Now understand क्या हो रहा है इधर, ठीक है? तीन केसेस ले रहे हैं अभी, ठीक है? पहला वाला केस ये है जिसके अंदर तुम्हारे पास मोल्टन NaCl है, वाटर नहीं है, और तुमने क्या किया, यहाँ पे
स्टील इलेक्ट्रोड डाल दिए। स्टील इलेक्ट्रोड का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एक बात बताओ, मोल्टन NaCl में Na+ है और Cl- है, तो Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? गेन कर। अच्छा, जो Na+ है अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कौन से रॉड की तरफ जाएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जो मेटल कैटआयन है अगर वो नेगेटिव चार्ज रॉड की तरफ जा रहा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज रॉड पे तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, तो कह सकते हैं ना नेगेटिव चार्ज रॉड इज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज एनोड। बोलो हाँ या ना? ए अमर कैसा? हेलो सर, सॉरी मेरा ट्रेन 1 घंटा पहले बोरीवली पहुंचा, फिर घर आने में बहुत ट्रैफिक था इसलिए टाइम लग गया। चलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वेदांत क्या बात हुई उससे? फोन नहीं वो नहीं है उठाया? क्लास में, नहीं है? मैं कॉल करता हूँ उसको। हाँ तो करके दो एक बार, मैंने किया उसको, उठाया नहीं उसने। देखो क्या होगा, मोल्टन NaCl केस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म सोडियम सॉलिड एंड जो क्लोराइड एनियन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म रिडक्शन मतलब कैथोड, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। इतना मानते हो गाइस? इतना Yes, मानते हो? ओके ना, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? या लिसन, तुम्हारे पास यहाँ पे एक्वस NaCl है। जब एक्वस NaCl होता है तो तुम एक काम करो, नॉर्मल स्टील इलेक्ट्रोड ले लो दोनों। स्टील इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होते हैं कि नॉन रिएक्टिव? नॉन रिएक्टिव, तो क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? नहीं उठा रहा। नहीं कर, नहीं उठा रहा ना? नहीं, पता नहीं सो क्या गया सीन। होगा। अरे ऐसे कैसे सो जाएगा जब लिखा हुआ था उधर? वो करता है। ठीक है देखते हैं। मैं कह रहा हूँ एक्वस NaCl है, ठीक है, तो मेरे पास या तो Na+ का रिडक्शन करवाऊं कि वाटर का रिडक्शन करवाऊं, तो Na+ का रिडक्शन होगा कि वाटर का रिडक्शन होगा? नीचे कौन एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? वाटर। तो कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा जब वाटर के अंदर किस चीज का रिडक्शन होगा, H+ का कि OH- का? H+। तो H+ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस OH- आएगा। अब एनोड पे क्या होता है बेटा? पहले तो ये चेक करो कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है कि नॉन रिएक्टिव। आंसर है नॉन रिएक्टिव। अब एनोड पे क्या होगा? स्टेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं कि लूज होते हैं? लूज। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक Cl- और एक वाटर है, एक्वस है ना, तो Cl- का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का कि वाटर का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का? अगर E0 की वैल्यू के हिसाब से जाओ तो वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, बट क्योंकि ओवर पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? Cl-। वो Cl-, तो Cl- तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन गैस बनेगा एनोड पे। तो कैथोड पे तुम्हारा हाइड्रोजन गैस आएगा, एनोड पे क्लोरीन गैस आएगा। इतना समझ में आया? अब तुमने क्या किया, एक्वस NaCl ले लिया। एक्वस NaCl के केस में तुमने क्या किया, यहाँ पे एनोड ले लिया स्टील, कैथोड ले लिया मर्करी।
ये तुम्हारा मर्क्यूरी लिक्विड है और प्लैटिनम को तुमने अंदर डाल दिया, इसे कहते हैं मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, एंड दोनों को कनेक्ट कर दिया। How was the test, Amesh? तो पूछो मत यार, बहुत इरिटेटिंग था। 4 सेक्शन थे, लेकिन पहला सेक्शन है रीडिंग का, वो बहुत घटिया गया। मतलब उसमें टाइम निकल गया और लास्ट कॉम्प्रिहेंशन पूरा फ्लंक मारा मैंने। ओ, हाँ, और मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का हुआ है ये लास्ट कॉम्प्रिहेंशन, बहुत लोगों का छूट गया। अब मैं तो पहली बार दे रहा हूँ, 2 हफ्ता ही प्रिपेयर किया मैं, इसीलिए मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तेरे को बोला था शीला मैम से ले ले 1-2 क्लास चीजों के ऊपर। तो मेरे को घर पे मार्क्स आ रहा था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या पता नहीं क्या हो गया, टाइम हाँ, निकल गया मेरे हाथ से। बोला तो था तेरे को शीला मैम से ले ले एक बार ना, सुनता कहाँ है तू? अभी अगर मार्क्स नहीं आया और फिर दिसंबर में दूंगा तो फिर ले लूंगा शीला मैम से क्लासेस। हाँ, he is very good in that aspect. बाकी 3 जो लैंग्वेज सेक्शन था वो बहुत ही अच्छा गया, मैथ्स और लैंग्वेज सेक्शन बहुत अच्छा गया। सिर्फ एक सेक्शन हाँ, में मार्क्स रह गए, वरना मेरे को आ जाता 15-50 प्लस आराम से। अरे मुझे तो फुल चाहिए ना। मुझे भी चाहिए था। अरे मेरे को तो फुल चाहिए ना, मुझे तो पता है ना कि जितने भी बच्चे गए हैं उसमें वो फुल लेके ही गए, जहाँ पे भी गए। मैं जितने भी बच्चों ने स्टार्ट 1 और 2 दिया है ना, उनके पूरे मार्क्स हैं। पहले 2400 का होता था ये। ठीक चलेगा है। सर, अभी अगर मैं दे रहा हूँ दिसंबर में तो शीला मैम से क्लासेस ले लूंगा इंग्लिश के लिए। हम्म, कुछ 25 आवर्स का इनका एक सेशन रहता है। ठीक है, एनीवेज अभी रुक जा, ले लियो, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, या मैं ये कह रहा हूँ, अब मर्करी कैथोड है। ठीक है, अब मर्करी कैथोड, कैथोड में क्या होता है, Na+ का रिडक्शन होता है और वाटर का रिडक्शन होता है। तो तुम मुझे बताओ, अगर कैथोड मर्करी है तो सोडियम का रिडक्शन होगा कि वाटर का रिडक्शन होगा? सोडियम। सोडियम। सोडियम का सोडियम। रिडक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम, मर्करी की क्या टेंडेंसी होती है, सोडियम के साथ क्या करता है वो? सोडियम अमलगम फॉर्म अमालगम बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? अमलगम। अमालगम, राइट। तो सोडियम का रिडक्शन होगा टू फॉर्म सोडियम, एंड एनोड पे क्या होगा, अगर Cl- और वाटर है और नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है एनोड, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करवाऊं कि वाटर का ऑक्सीडेशन करवाऊं? क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, मेरे पास Cl2 आएगा एंड इलेक्ट्रॉन आएगा। गॉट इट? यस। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स एट अनदर क्वेश्चंस के बारे में, अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मैंने क्या किया, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया, ये भी सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिया। यहाँ पे ना मैंने इम्प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया और दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तुम्हारा AgNO3 एक्वस। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मेटल रॉड तुम्हारा एनोड एक्ट कर रहा है, तो मेटल रॉड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है कि नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है? मेटल रिएक्टिव। रॉड, हाँ जी, रिएक्टिव। रिएक्टिव। तो अगर तुम्हारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो तुम क्या आयॉन्स पे ध्यान देते हो कि इलेक्ट्रोड पे ध्यान देते हो?
अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आयॉन्स पे ध्यान दिया जाता है कि इलेक्ट्रोड्स पे ध्यान दिया जाता इलेक्ट्रोड। है? इलेक्ट्रोड मैंने क्या कहा था, जो एनोड की तरह एक्ट करेगा, राइट? जो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगा उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो गया, भाड़ में जाए आयॉन्स। तो तुम्हारे पास सिल्वर है इम्प्योर, ठीक है। नाउ एक काम करते हैं इम्प्योर सिल्वर के अंदर ना हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोड बना देते हैं सिल्वर का, उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है इम्प्योर। इसके अंदर ना लेट्स से मेरे पास मैग्नीशियम है एज एन इम्प्योरिटी, मेरे पास लेट्स से एल्यूमिनियम है इम्प्योरिटी, मेरे पास कॉपर इम्प्योरिटी है और मेरे पास गोल्ड इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी कौन कौन सी है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर। कोई डाउट? नहीं। तो एक बात बताओ, जो एनोड मेटल रॉड होता है उस एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। तो शैलेश से दैट यहाँ पे पूरा एजी है, तो यहाँ से जो एजी होगा पहले वो एजी प्लस निकलेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ। अब सोचो, यहाँ से ना एजी प्लस निकल रहा है सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे जो इसका थिकनेस है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हुआ है। जब थिकनेस कम होगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ना मैग्नीशियम सरफेस पर आ जाएगा, राइट? हाँ। तो तुम मुझे बताओ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है? मैग्नीशियम का। तो पता है क्या होगा, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो फॉर्म Mg2+ एन इलेक्ट्रॉन, गेटिंग इट? या मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर से सिल्वर का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, सिल्वर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर क्या होगा, थिकनेस कम कॉपर। होगा, एल्यूमिनियम सरफेस पर आ जाएगा, राइट? अब एल्यूमिनियम और सिल्वर में से किसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। हाँ जी, एल्यूमिनियम का ना। हाँ एल्यूमिनियम का। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीडाइज करके पानी के अंदर आ जाएगा, पूरा एल्यूमिनियम बाहर आ जाएगा, फिर से बेचारा सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेज शुरू होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे कॉपर बाहर आ जाएगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई होता है कि सिल्वर का? कॉपर का। कॉपर का। तो कॉपर भी क्या करेगा, तुम्हारा ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन। एंड देन जब गोल्ड आएगा सरफेस पे, तो गोल्ड का रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगा कि वाटर का, सॉरी सिल्वर का? क्या सर? सिल्वर का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा रहेगा कि गोल्ड का? सिल्वर का। सिल्वर का। तो पता है क्या होगा, गोल्ड ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिल्वर करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, गोल्ड नीचे आके जमा हो डिपॉजिट जाएगा, हो जाएगा ना। और इस गोल्ड आ जाएगा, सिलिका आ जाएगा जो कि अर्दन इम्प्यूरिटीज होती है। तो एनोड के नीचे ना जो भी चीज इकट्ठी होते हैं यहाँ पर, उसे बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। एनोड मड के अंदर क्या क्या आएगा तुम्हारा, इस केस के अंदर सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड, अरे सॉरी सिल्वर कह रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर और क्यों आएगा? सिलिका। सिलिका और गोल्ड आएगा, गेटिंग इट? अब सुनो ध्यान से, हाँ। एक जैसे मिनट ही सर, एक सिली डाउट है, सिलिका कहाँ से आया? अर्दन इम्प्यूरिटीज है ना किसी अच्छा भी, हाँ। हाँ मेटल के मैं अभी अंदर बोला। इम्प्यूरिटीज तो रहेंगी ना, यस। गेटिंग अ पॉइंट? या। चलें आगे। हाँ। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ हम कहाँ थे? हमारा कहाँ थे हम लोग? या अब जब हम इसको स्टडी करेंगे ना तो सोचो, मेरे पास यहाँ पे ना Ag+ है जो ऑलरेडी AgNO3 दे रहा है, Ag+ यहाँ से भी आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा सा इम्प्यूरिटी Mg2+ का भी आया और थोड़ा सा इम्प्यूरिटी कॉपर 2+ का भी आया, बोलो हाँ या ना।
और एल्यूमिनियम 3, ये इम्प्योरिटी की वजह से है। बोलो हाँ। यस। अच्छा, तो सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास Ag प्लस है, Mg2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है। तो रिडक्शन किसका होगा? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होता है। अगर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो इन चारों कैटायन में से किसका रिडक्शन होगा? किसका टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ज्यादा है इन चारों कैटायन में से? हाँ जी, बोलो। अरे किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है? सिल्वर प्लस का, कॉपर 2 प्लस का, एल्यूमिनियम 3 प्लस का, मैग्नीशियम 2 प्लस का, या फिर रसट? इन चारों में से किसका रिडक्शन होगा? Could you repeat? ये चारों कैटायन्स आ रहे हैं, मुझे पता है ये ज्यादा अमाउंट में है और बाकी सारी इम्प्योरिटीज की टर्म्स में बाहर आ रहे थे बिकॉज हमने एनोड को स्टडी किया। अब मेरे पास कैथोड जो है वो प्योर Ag है। मुझे कैथोड पे प्रोसेस देखना है, क्या होगा कैथोड के अंदर। ठीक है, कि कौन सी चीज कैथोड पे डिपॉजिट होगी, रिड्यूस होगी। तो Ag प्लस का रिडक्शन होगा, कॉपर 2 प्लस का होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस का होगा, Mg2 प्लस का होगा। इन तीनों कैटायन, सारे कैटायन में से किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है? Mg2 प्लस। किसका? नहीं, Al3 प्लस। अरे रिडक्शन टेंडेंसी पूछ रहा हूँ यार, वो लेके 12 श्री का नाम में सबसे नीचे कौन आएगा? सिल्वर आएगा, कॉपर आएगा, एल्यूमिनियम आएगा कि मैग्नीशियम आएगा? सबसे सिल्वर ज्यादा आएगा। सिल्वर सिल्वर सिल्वर। तो किसका रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा आ जाएगा? सिल्वर। तो कैथोड पे क्या होगा? Ag डिपॉजिट होगा। तो सोचो ना, मेरे पास इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर रॉड में से Ag प्लस निकल रहा है, इम्प्योरिटीज निकल रही हैं, और क्या प्योर रॉड पे Ag प्लस डिपॉजिट हो रहा है। तो शैल आई से दैट मैं प्यूरिफिकेशन कर रहा हूँ, जितना हाँ। भी Ag प्लस यहाँ से निकल रहा है उतना Ag प्लस यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और इम्प्योरिटीज तुम्हारा आइदर सॉल्यूशन में रहेगा या एनोड मड में आएगा, राइट? या तो तुम्हारा जो इम्प्योर रॉड है वो प्योर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? या अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर समझ में आ गया तुम लोगों को तो एक क्वेश्चन का जवाब और दो। आदि भी नहीं है क्लास में। आदि सैट का प्रिपरेशन कर रहा है, इट सीम्स ही विल नॉट अटेंड सम ऑफ द क्लासेस। लेकिन सैट तो आज था। प्रोबेबली। अरे कुछ और डेज में स्लॉट्स होंगे ना बच्चों के। नहीं नहीं, अभी एक ही दिन होता है, फिर सबके लिए एक दिन होता है, फिर सीधा दिसंबर में एसएटी। एक ही दिन था, ठीक है, आ जाएगा हाँ। वो। क्या क्या उससे कहीं और लगा होगा उसका। वो भी ठीक है। जयपुर गया होगा शायद से आज एसएटी देने के लिए, या तो अहमदाबाद आया होगा, लेकिन मैं उसको देखा नहीं। तो तुम्हारा मुंबई में सेंटर नहीं आया? क्या सर? मुंबई में सेंटर नहीं आया? एक्चुअली किसी ने मुंबई के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि सबको लगा अगर कोरोना वायरस सेट हो गया तो फिर मुंबई का कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर कोरोना वायरस का थर्ड वेव आया तो मुंबई का सेंटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद जयपुर का नहीं होगा। इसलिए एवरीवन रश्ड फॉर अहमदाबाद एंड जयपुर सीट्स ओके। एंड बड़ौदा। एंड क्या? बड़ोड़ा? और बड़ौदा, तीन जगह थे जो ज्यादा पॉपुलर थे। प्लस ओके, मुंबई के सेंटर्स बहुत घटिया होता है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जो हम नॉर्मली इंटरनेशनल स्कूल्स में होता है एसएटी, लेकिन मुंबई के लिए पता नहीं क्यों वो लोग कोई गवर्नमेंट स्कूल में रखते हैं, तो टेबल्स बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं और लिख नहीं सकते बराबर से पेपर। ये तो ऑनलाइन होता है ना? एसएटी तो फिजिकल एग्जाम होता है, अच्छा। टोफिल ऑनलाइन होता है। हाँ, देखो यार, ये प्योर Ag है, ये इम्प्योर Ag है, और यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया।
ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले एनोड पे क्या होगा। एनोड तुम्हारा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है कि नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है? नॉन इम्प्योर, इम्प्योर एजी। जब मेटल रॉड तुम्हारा इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है तो उसे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, राइट। या तो मेटल रॉड तुम्हारा ऑक्सीडाइज करता है, तो मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे। इम्प्योर एजी का ब्लॉक डिकम्पोज होना चाहिए लेकिन होगा नहीं क्योंकि CuSO4 हमारा सॉल्वेंट है, दोबारा बोल। नहीं होगा ना वो डिकम्पोज। सॉल्वेंट आपने CuSO4 लिया तो फिर क्यों करेगा आयन ट्रांसफर? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, से फर्क नहीं पड़ता है। मेटल रॉड अगर तुम्हारा एनोड है ना, तो मेटल रॉड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एजी जो है ना वो एजी प्लस बनाएगा, ठीक है। ठीक है। तो एजी प्लस आएगा यहाँ पे। बट एक बार बताओ, एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कम है, कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तुमको पता है ना, नर्स इक्वेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF लॉग ऑफ 1 मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कॉपर का ज्यादा है तो उसका ई वैल्यू इनिशियली ज्यादा होगा। सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सिल्वर का रिडक्शन टेंडेंसी कॉपर से कम रहेगा। इनिशियली की बात हो रही है। हाँ, तो पहले कॉपर रिड्यूस करेगा कि सिल्वर रिड्यूस करेगा इस कॉपर, रॉड। तो कैथोड पे क्या होगा, तुम्हारे कॉपर पास डिपॉजिट होगा। छोटा लेयर कॉपर 2 प्लस कॉपर का आएगा। जैसे ही तुम्हारा सिल्वर बढ़ना शुरू होगा, बिकॉज जैसे ही कॉपर जाएगा वैसे ही 2 सिल्वर आएंगे, हाँ, ठीक है। तो धीरे धीरे सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉपर का। घटेगा। तो एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद सिल्वर का रिडक्शन शुरू हो जाएगा, गेटेंगे। यस। तब हमारा Ag प्लस रिडक्शन करना शुरू करेगा टू फॉर्म Ag। तो पहले ना इस रॉड पे कॉपर आएगा, तो इस रॉड पे क्या आएगा, कॉपर फिर सिल्वर। फिर सिल्वर डिपॉजिट होगा, एक गेटिंग इट। क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में ये प्रोसेस यूज होता है क्या? गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ जिंक ओवर मोल्टन जिंक ओवर आयरन। तो सिंस कोट करना है अलग अलग लेयर्स, तो फिर ये कौन सा यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, मोल्टन जिंक, क्या जो है ना मोल्टन जिंक, अच्छा, उसको कोट किया जाता है सिल्वर के ऊपर, मोल्टन जिंक को, हाँ, गेटिंग इट, अंडरस्टूड। चलें आगे। अच्छा। तो एक क्वेश्चन है, जब भी हम लोग गोल्ड प्लेटिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस से होता है ना? हाँ, ठीक है। गोल्ड प्लेटिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हाँ, चलें हाँ, चलो गेट। Okay, now commercially available batteries flash cell, getting it। सबसे पहला सेल हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेल्स। व्हाट आर प्राइमरी सेल्स? These cells are irreversible cells and once the cell got discharged, the cells cannot be recharged back। उन सेल्स को बोलते हैं हम ड्राई सेल्स। क्या बोलते हैं? ओ सॉरी, प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स के अंदर ना तुम्हारे को पहला करना है ड्राई सेल,
जिसे लिक्लांची सेल भी बोलते हैं। और तुम्हारा एक आता है बटन सेल। एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो तुम उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हो। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, sir. पहला ड्राई सेल देख लेते हैं, ठीक है। जो तुम पेंसिल सेल यूज करते हो ना, AA बैटरी, AAA बैटरी, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, है ना, उसे ड्राई सेल कहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड है क्या ये, क्या है, मतलब किस टाइप से इनका काम चलता है। पहले सुनो, ड्राई सेल बनता कैसे है। ये तुम्हारा ग्रेफाइट रॉड है, कार्बन रॉड, ठीक है। दैट इज योर ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, पता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं इसको, बाहर की तरफ निकला होता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, एक पेपर टाइप मटेरियल रहता है जो कि ना इसको सराउंड करके बैठा होता है। अबे बाप, ठीक है, ये पेपर टाइप मटेरियल होता है। इस पेपर टाइप मटेरियल के बीच, कार्बन रॉड और पेपर टाइप मटेरियल के बीच में ना मिक्सचर ऑफ कार्बन MnO2 होता है। एंड देन इसके बाहर एक जिंक का कोटिंग रहता है। वो जो तुम्हें बाहर जो कलरफुल कलर का वो जो मेटल का पीस रहता है ना, कवरिंग रहता है, वो जिंक का रहता है। दैट जिंक योर, दिस जिंक इज योर बिलवेड, क्या कहते हैं उसको, एनोड, ठीक है। ये जिंक कोटिंग है, जिंक, आउटर मोस्ट कंटेनर है जिंक। और इधर तुम्हारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। तो ये सारी चीजें तुम्हारी ड्राई सेल के अंदर रहती हैं। समझ में आई बात? ये बाहर कहाँ चला गया? ए झिंगुर, कहाँ है तू? आवाज आ रही है तेरे को? मेरा वाईफाई राउटर उड़ गया था, सॉरी। राउटर उड़ गया था। अच्छा, ये तुम्हारा ड्राई सेल है, ठीक है। ये कार्बन रॉड होता है, इलेक्ट्रोड होता है। ये एक पेपर टाइप मटेरियल होता है। उस पेपर टाइप और कार्बन के बीच में, रॉड के बीच में मिक्सचर ऑफ कार्बन और MnO2 रहता है, ठीक है। ये बीच वाला ग्रेफाइट कैथोड है, और ये जिंक एनोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल रहता है, ठीक है। जिंक इज नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। इस पेपर और जिंक के रॉड, जिंक कंटेनर के बीच में पेस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2 रहता है। Got it? यस सर। Now सुनो, अब इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है ना। शुरू करें? हाँ सर। ओके, नाउ सबसे पहले ना एनोड पे आता है। एनोड जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, तुम्हारा Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। गेटिंग इट? ये एनोड पे होता है। गेटिंग इट? हाँ। अब कैथोड क्या होता है? कैथोड पे सबसे पहले जो अमोनियम आयन होता है ना, वो तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करता है और तुम्हारा अमोनिया गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। गेटिंग इट? ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, वो MnO2 के साथ रिएक्ट करता है। तो 2MnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा उसके साथ, और MnO2 को ना रिड्यूस कर देता है MnOOH के अंदर, मतलब Mn+4
तुम्हारा Mn+3 के अंदर रिड्यूस होता है। बात समझ में आई? हाँ और जिंक के साथ ना ये जो अमोनिया गैस है वो क्लब करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जिंक प्लस अमोनिया, वो पेस्ट ऑफ ZnCl2 डाला है ना हमने, तो Zn2+ है उसके अंदर, एंड मेरे पास अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब करके ये बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तभी तुम्हारा सेल फटता नहीं है, बिकॉज गैसेस बन रही है ना अंदर। तो हाइड्रोजन गैस MnO2 ले लेगा और अमोनिया गैस Zn2+ के साथ क्लब करके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। गेटिंग इट? तो दोनों ही गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। गेटिंग अ पॉइंट? और ड्राई सेल का E0 पता ना कितना होता है? 1.5 वोल्ट। गेटिंग इट? तो ओवरऑल रिएक्शन जो है ना वो तुम्हारी ये रही, जैसे अल्कलाइन ड्राई सेल बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो जिंक प्लस 2OH minus gives ZnOH whole twice plus 2 electron. MnO2 plus water plus 2 electron gives 2 MnOOH plus 2 OH minus. नेट रिएक्शन हो जाएगा जिंक प्लस 2 MnO2 plus 2H2O gives ZnOH whole twice plus 2 MnOOH. ये तुम्हारा अल्कलाइन ड्राई सेल है। ऊपर तुम्हारा ड्राई सेल था नॉर्मल वाला, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारे पार्ट ऑफ ड्राई सेल के अंदर आते हैं, लिकलांची सेल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? Eclampsia cell. लिकलांची सेल। डन? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. ओके सेकेंड तुम्हारा प्राइमरी सेल का पार्ट है बटन सेल। बटन सेल। गेटिंग इट? अब बटन सेल के अंदर क्या होता है? तुम्हारा एक एनोड होता है। एनोड इज योर जिंक पाउडर and mercury amalgam. Getting it? Yeah. Right. And cathode is your mercuric oxide. और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है that is a mixture of ZnO and KOH. वो जो बटन सेल पता है तुमको, क्या नाम, जो तुम्हारे वॉचेस के अंदर डलते हैं, राइट? छोटे छोटे बटन सेल जो होते हैं, राइट? हाँ, इनका जो E0 वैल्यू रहता है सेल का 1.35 वोल्ट रहता है। बट इसकी एक खास बात है बटन सेल की, पता है क्या? जिंक तो एनोड है, तो जिंक क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीडाइज करेगा टू फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तुम्हारा OH माइनस है। तो जिंक प्लस 2OH माइनस गिव्स ZnO प्लस, दैट इज सॉलिड, प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड कैथोड पे क्या होगा, HgO तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू गिव Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। यार एक बात बताओ, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब देखा जाए तो ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे 2 OH माइनस इलेक्ट्रोलाइट यूज हुए
यहाँ पे 2 OH माइनस इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस हुए, तो नेट चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट कितना हुआ? 0। 0। जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट चेंज नहीं होगा तो नर्स्ट इक्वेशन के अंदर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी क्या? नहीं। रुक जा, बताता हूँ, रुक जा। तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन ये है, ठीक है, समझना है इस चीज को। अगर इसके अंदर नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n फैक्टर 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सारे 1 1 पे ही आएंगे, राइट? लॉग 1 क्या होता है? कोई OH माइनस, कोई OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है क्या? इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है क्या लास्ट में? नहीं। नहीं है ना। तो शेलेज से जो E है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, विच इज इक्वल टू E0, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं हो रहा है। हाँ। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसलिए सेल का जो पोटेंशियल है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अरे अगर तुम टेलीविजन वाला रिमोट देखते हो, जब रिमोट काम नहीं करता तो उसके सेल्स निकाल के थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, पैट करके फिर डाल के फिर से चलने लगता है ना वो। That is understatement, sir. हाँ हाँ, That is जो a big understatement. that, मतलब तुम ठोक पीट के कर लेते हो स्टार्ट तुम उसको, है ना, हाँ। चलता है ना। बट अगर वॉच सडनली रुक जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो तुम्हारा रिस्ट वॉच होता है, अगर वो सडनली रुक जाती है, ठीक है, वो चल आराम से चलती रहती है, सडनली एक दिन उठते हो तो उसकी घड़ियां मतलब कांटे नहीं चलते हैं, राइट? और उसका ऐसा नहीं हाँ। उसको तुम पैक करोगे तो वो चलने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी नोटिस किया है ये कि वॉच वाला जो बटन सेल है वो एक ही बार में बंद हो जाता है, वो अपना पोटेंशियल चेंज ही नहीं करता है। बट जो बैटरी सेल्स होते हैं उसका पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो रहा है उसके अंदर। अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ चेंज होगा, तो तुम पैट करके उसका काम चलाते रहते हो। बट बटन सेल के साथ ऐसा नहीं होता, एक बार गया तो गया। मेरा और वॉच तो उसका बैटरी उड़ जाने से पहले ही गुम हो जाता था। क्या? मेरा वॉच बैटरी खत्म होने से पहले ही गुम हो जाता था। ओके ठीक है, बट कभी तो नोटिस किया हो कि वॉच सडनली चलना बंद हो गई, हाँ। है ना? ऐसा नहीं होता है कि वो तुमको ये बताए कि चलो धीरे धीरे टाइम कम करती हूँ उसके बाद रुकती हूँ, ना 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 ना, उसका पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज होता ही नहीं है, तो आराम से चलते चलते सडनली एक दिन बंद हो जाती है। गॉट इट? अच्छा, इसीलिए उसको वॉच में यूज करता है। हाँ, अंडरस्टूड। गॉट इट। या। चलो ग्रेट, चले आगे। हाँ। नाउ सेल, तुम्हारे सेकेंडरी सेल्स है ना, पहला आ गया तुम्हारा लेड डिस्चार्ज बैटरी, लेड डिस्चार्ज बैटरी, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है ना उसे लेड डिस्चार्ज बैटरी कहते हैं, गेटिंग इट? और लेड स्टोरेज बैटरी बोल सकते हो उसको। तुम्हारा लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, उसके अंदर यू हैव लेड एंड लेड डाइऑक्साइड, ठीक है? लेड लेड, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज की। ये तीनों कनेक्टेड है, दे आर लेड। Let's say they are anode during discharge.
और these are cathode, लेड डाइऑक्साइड, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहता है। बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। अंडरस्टूड दैट? नाउ लिसन, ये तुम्हारे इन्वर्टर में होता है, तभी वो जब इन्वर्टर काम करना थोड़ा सा खराब कर जाता है तो क्या करते हो? अच्छा, H2SO4 है, 30% H2SO4 है, ठीक है। करते क्या हो, पानी डालते हो उसके अंदर या फिर एक्स्ट्रा H2SO4 डालते हो, सॉल्यूशन का H2SO4 सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट को काम करने के लिए। ये कौन है? ओके, तो गाइस लिसन, ड्यूरिंग डिस्चार्ज तुम्हारा जो लेड है वो तुम्हारा Pb+2 बनता है, +2 इलेक्ट्रॉन आता है। गेटिंग अ पॉइंट? जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, गेटिंग इट? और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। PbO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तुम्हारा Pb2+ बनाएगा। राइट, तो Pb+ ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 बना। ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हो, फिर H+ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो 4 H+ आएंगे इधर, ठीक है। और तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर तुमको नेट रिएक्शन लिखना है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन Pb+PbO2 और H+H2SO4 देगा, तो 4 H+ 2 H2SO4 से आएंगे। 2 Pb2+ तुम्हारा PbSO4 हो जाएगा, प्लस वाटर आ जाएगा। ये तुम्हारा सेल रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो एक बार बताओ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है कि क्या नाम है, कांस्टेंट है? अरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम H2SO4 कम हो रहा है कि कांस्टेंट है? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये वाइट पीपीटी है, ये लिक्विड है, क्या पूछ रहा हूँ? गाइस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कम हो रहा है कि कांस्टेंट है? हेलो, आवाज आ रही है? कम हो रहा है ना? तो कम हो रहा है तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ईएमएफ चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा ना? हाँ, चेंज होगा ना। अब ये होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग चार्जिंग बैक रिएक्शन रहेगा, ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन इज बैक। अंडरस्टूड? क्या? बात समझ में आई? हाँ। ग्रेट। समझ में आया रिएक्शन कैसे लिखना है? ये तुम्हारा सेकेंडरी सेल है जो रिचार्जेबल बैटरीज में गिना जाता है। गॉट इट? क्या?
Now next. Nickel cadmium storage cell. Nickel cadmium storage cell. ठीक है, अब निकल कैडमियम स्टोरेज सेल के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग डिस्चार्ज की बात करते हैं. हाँ, you have anode as cadmium, cathode as nickel dioxide. ठीक है, एंड जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है that is your electrolyte is KOH, potassium hydroxide. ठीक है, नाउ देखो होता क्या है, कैडमियम है ना, पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Cd2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा. निकल डाइऑक्साइड 4 प्लस है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बेचारा और Na2 प्लस में कन्वर्ट होगा. गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? यस सर. अब नहीं किया है मैंने रिएक्शन, या एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, बैलेंस नहीं किया है. बैलेंस के लिए मेरे को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है. बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हो तुम लोग. बेसिक मीडियम में क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट KOH है. तो मुझे बताओ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है राइट हैंड साइड में, तो वहां पे कितने वाटर डालूं? बाबा 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने वाटर डालूं बैलेंस करने के लिए? बोलोगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वाटर कितने डालने पड़ेंगे? 2, राइट, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस के लिए. अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन बैलेंस करते तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कितने H+ डालने पड़ेंगे? 4 H+ डाल दिया. बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो जितने H+ होते हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड करते हो. तो 4 H+ प्लस OH- बिकम 4 वाटर. 2 वाटर से 4 वाटर गया, 2 वाटर बच गया इधर. तो नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा? NiO2 प्लस 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Ni2 plus 4 OH-. Agree? Yeah. Very good. So proud of you. आया बताओ. So क्या कैडमियम तुम्हारा Cd2 प्लस दे रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था. कैंसिल करो, ऐड करो तो आ जाएगा NiO2 सॉलिड प्लस कैडमियम सॉलिड gives NiOH whole twice solid, CdOH whole twice solid. Getting a point? Getting a point? Yes, sir. एक बार बताओ, क्या फाइनल रिएक्शन के अंदर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है क्या OH- का या फिर H+ का फाइनल रिएक्शन के अंदर? नहीं. क्या EMF चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं. नहीं. डन. हाँ. ओके. हाँ हाँ, चले आगे. Yes, sir.
Okay. Now, last but not the least, is not a primary cell, not a secondary cell, is a whole new topic, fuel cell. Getting it? अब इसको ना अपोलो स्पेस स्टेशन पे यूज किया गया था। अपोलो जो मिसाइल लॉन्च किया था, जो स्पेस शटल यूज किया था, फॉर एस्ट्रोनॉट्स वी हैव यूज्ड दैट फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल के दो प्रॉपर्टीज थी, एक तो पानी बनाना बट लोगों के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो कैसे किया था सुनो। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं, तो ठीक है, ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन गैस पास किया, यहाँ से मैं ऑक्सीजन गैस पास कर रहा हूँ। इस कंटेनर के अंदर आई हैव वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट NaOH। गॉट इट? ये जो प्लैटिनम है ना, उससे ये गैस धीरे धीरे डिफ्यूज करती है, ऑक्सीजन धीरे धीरे डिफ्यूज करेगी। ये हो जाता है तुम्हारा एनोड, ये हो जाता है तुम्हारा कैथोड। ठीक है, अब एनोड में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस होगा उसका हो जाएगा रिडक्शन, O2 माइनस। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, दो ही ले लो, आधा H2O लिख लो। अब इसको बैलेंस करना है, कौन सी मीडियम में बैलेंस करना है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? OH माइनस, राइट। तो मुझे H प्लस की प्रेजेंस में बैलेंस करना है कि OH माइनस की प्रेजेंस में बैलेंस करना है? आराम खोलो, H प्लस की प्रेजेंस में बैलेंस करना है कि OH माइनस की प्रेजेंस में? अगर इलेक्ट्रोलाइट NaOH, अबे इलेक्ट्रोलाइट NaOH है, कौन सा मीडियम है? OH माइनस, सॉरी। तो जितने H प्लस होते हैं दोनों साइड, उतने OH माइनस डालते हो कि नहीं डालते हो? डालता है। गलती कर दी बड़ी वाली। पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2H प्लस आएगा, फिर यहाँ पे तुमने 2H माइनस डाल दिया ताकि बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाए। नेट सेल रिएक्शन लिखो, ये हो गया तुम्हारा एनोड, ये हो जाएगा कैथोड। 2H प्लस प्लस 2H माइनस, दो वाटर, एक वाटर कैंसिल करोगे तो एक वाटर बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन गया। 2H प्लस 2H माइनस क्या बनाया इसने? दो वाटर, उसमें से एक वाटर गया, तो OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस गया, तो आया क्या? H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। तो तुम्हारा इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है एनोड कैथोड पे, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्लब करके क्या बना रहा है? जो बाय प्रोडक्ट वाटर निकला, द एस्ट्रोनॉट यूज्ड टू ड्रिंक दैट वाटर। गॉट दैट पॉइंट? Yes, sir. ओके,
Great. Some important concepts. Maximum work done. For a cell is delta G, which is equal to minus NFE. ये मैक्सिमम वर्क डन होता है किसी भी सेल के लिए, और सेल का जो एफिशिएंसी होता है ना, सेल एफिशिएंसी which is defined by eta is defined as the amount of work done by a particular cell divided by the enthalpy change or energy change in the reaction. ये दोनों मेन चीजें पूछी जाती हैं जेई मेंस में कि मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कितनी है सेल की. गॉट इट? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो समझ में आया? सर चलो ग्रेट, आगे चलें. हाँ सर. ओके, ओके. नेक्स्ट इज कोरोजन. ए कोरोजन क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस eating away of metal by redox reaction, which is occurred in the presence of atmospheric gases. For example, आयन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तुम्हारा एसिडिक मीडियम में और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, Fe2O3.X2O, विच इज रस्ट. ठीक है. कॉपर जो है वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, राइट, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम की प्रेजेंस के अंदर तुम्हारा ये बनता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, which is your bluish green poisonous substance. कॉपर का कोरोजन होता है ये. ठीक है. आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं. सिल्वर H2S गैस के प्रेजेंस Ag2S बनाता है. तो ये जो स्पॉन्टेनियस ईटिंग अवे ऑफ मेटल हुआ बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को क्या बोलते हैं? corrosion, करोजन. एंड आयन की करोजन को रस्टिंग बोलते हैं. गेटिंग इट? ऑल द करोजन्स आर, क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्टेनियस redox reaction where metal act as anode and gases acts as cathode. ठीक है. अब मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग देख लो.
ये आयन है। आयन के अंदर क्या होगा, सपोज कुछ मॉइस्चर कंटेंट आयन के ऊपर लग गया है, आई हैव वाटर एंड सम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ और HSO3- बनाएगी। मुझे पता है यार एसिडिक मीडियम भी है, इलेक्ट्रोलाइट है, और तुम्हारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पड़ा होता है। तो होता क्या है, सबसे पहले आयन है ना, वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज करता है आयन 2+ में एंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में H+ की प्रेजेंस के अंदर जो तुम्हारा वाटर ऑक्सीजन है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू फॉर्म वाटर, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। देन Fe2+ फर्दर ऑक्सीजन के साथ क्लब करता है एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, Fe2O3 बनता है। ये Fe2O3 बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्लब करके फाइनली Fe2O3 डॉट XH2O बनाता है, विच इज नोन एज रस्ट। एक बात बताओ, इनिशियली एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन हुई ना, हुआ ना ये रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जहाँ पे आयन ऑक्सीजन के ऊपर आता है तो आयन का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। नाउ अंडरस्टूड दैट? अरे बाबा अंडरस्टूड? yes sir. ग्रेट। ये तुम्हारा टॉपिक एनसीईआरटी का है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना इसके लिए, ठीक है। देन वी हैव 2 मोर टॉपिक्स लेफ्ट। कौन कौन से लिखवाए थे? सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गया, ये करना है हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ एंड हाउ टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी, ठीक है। सुनो, तुम्हारा इलेक्ट्रो फिजिक्स के अंदर वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाबा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। yes अमर कहाँ है ये? हाँ सर। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ तेरा? नहीं, चालू हो गया अभी हम लोग ने। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज तो पता होगा ना? हाँ, वेटस्टोन ब्रिज मालूम है। हाँ तो सुनो यार, होता क्या है ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर किया है ना? हेलो, क्या? पोटेंशियोमीटर किया है? नहीं। एक काम करना, जब पोटेंशियोमीटर हो जाएगा ना तो मुझे बताना, आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। आप बता दो तो ना क्या है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक वायर होता है यार, एक सेटअप जो ऐसा होता पोटेंशियल बता था ना। है। नहीं नहीं, सीन ये रहता है कि एक 100 सेंटीमीटर की वायर रहती है, इसको वायर बोल लो 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड ये कनेक्शन होता है, यहाँ पे रियोस्टाट होता है। रियोस्टाट तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। हाँ। रियोस्टाट तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। और यहाँ पे तुमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तुमको। अगर इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो तुमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, इस इलेक्ट्रोड का लेंथ L है, एरिया A है, और इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी चाहिए। अब चक्कर क्या है, इसको तुमने कनेक्ट किया एक
ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डाला, डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं डाला। क्यों? अगर डायरेक्ट पोटेंशियल डालोगे तो जो सॉल्यूशन जिसका तुम्हें कंडक्टेंस चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, उसका अंदर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कंडक्ट मतलब करंट चेंज हो, कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा उसका। मुझे इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस चाहिए तो मुझे ये चाहिए कि इसमें ना कैटायन एनियन का कॉन्सेंट्रेशन इंटैक्ट रहे, और जैसे मैंने डायरेक्ट करंट डालूंगा तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा, तुम्हारा कैटायन एनियन कैथोड एनोड पे प्रोड्यूस मतलब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट डाला। ऑल्टरनेटिंग करंट को डिटेक्ट करने के लिए ईयरफोन यूज होता है। तो तुमने एक ईयरफोन डाला, ये तुम्हारा ईयरफोन है, और यहाँ पे एक जॉकी होता है। जॉकी एक मेटल का पीस होता है, ठीक है। ये मेटल का पीस क्या करता है, इस वायर के ऊपर मूव करवाते हैं। दिस इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ये जॉकी है, एंड दिस इज ईयरफोन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, 100 सेंटीमीटर की वायर होती है ये, ठीक है। इस जॉकी को ना इस वायर के ऊपर मूव करते हैं। तो चक्कर क्या है, जब भी कोई भी करंट इस ईयरफोन के पास आएगा तो के थ्रू जाएगा, तो ईयरफोन के अंदर से आवाज आएगी, बोलो हाँ या ना। हाँ। तो यार एक ऐसा पॉइंट चूज किया मैंने, जब इस जॉकी को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया तो मैंने ये नोटिस किया कि जो ईयरफोन है ना उसमें से आवाज नहीं आ रही है। तो मतलब यहाँ से कोई करंट जा रहा है क्या? नहीं। सपोज करो ये L सेंटीमीटर है, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा, बिकॉज 100 इज द टोटल वायर लेंथ, हाँ। कि नहीं? अब वायर के ऊपर आ जाओ, तुमको पता है ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A किसी भी वायर के लिए, है ना? तो अगर रेजिस्टिविटी और एरिया वायर का सेम है तो शैल आई से दैट R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। जितना लेंथ चेंज करोगे उतना ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, राइट? अरे बाबा हाँ या ना? अगर कोई भी वायर है उसका लेंथ अगर L1 ले लिया और उसका लेंथ तुमने L2 ले लिया, तो R1 बाय R2 विल बी L1 बाय L2 ना, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो एक बात बताओ, जब व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है, मैंने क्या किया, इस जॉकी को ना इस पूरी वायर के ऊपर मूव किया, तो यहाँ पे मूव कर रहा था, आवाज आ रही थी। सडनली इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ना आवाज आना बंद हो गई। तो मतलब क्या होगा, जैसे आवाज आना बंद हो गई तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। या बोलो हाँ। या तो ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, करेक्ट? अगर रेशियो 1 है तो फिर वो बीच वाला जो कंडक्टर है वो खाली हो जाएगा ना, रेशियो करंट फ्लो 1। नहीं होगा। हाँ, जब इसका दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस हाँ हाँ बाय दिस, हाँ तो यहाँ से करंट नहीं आएगा, इसे हाँ, कहते हैं सॉरी हाँ। तो ये यूजलेस हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? या तो एक सोचो, तुमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड लिया। पहले ना इस इलेक्ट्रोड के अंदर तुमने एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसकी कंडक्टिविटी नोन है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, टू क्या सर? कैलकुलेट, बताता हूँ। स्टेप 1 क्या, टू कैलकुलेट L by A, that is cell constant for the cell, ठीक है। नाउ उसके अंदर क्या होगा, टेक सॉल्यूशन ऑफ known conductivity in the electrode and use potentiometer wire and at distance L1 the earphone
gets no earphone doesn't transmit any sound। तो सोचो तुमने क्या किया, ये रियोस्टैट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तुमने एक सॉल्यूशन डाला जिसका कंडक्टिविटी नोन है, और जॉकी किस लेंथ पे शांत हो गया भाई, ईयरफोन किस लेंथ पे शांत हो गया, एट लेंथ ऑफ L1। कोई डाउट? नहीं। ये 100 माइनस L1। तो एक बार बताओ, इस केस के अंदर R बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय 100 माइनस L1 लिख सकता हूं मैं, अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। दिस इज नोन टू मी, दिस इज नोन टू मी, कैन आई कैलकुलेट R2? Yes, sir. अच्छा एक बार बताओ, अभी कंडक्टिविटी ना मुझे पता है यहाँ पे, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो इज नोन। तो शैल आई से दैट मेरे पास R2 आया, R2 इज इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। तो रो मुझे पता है, तो L बाय ए आ जाएगा, हाँ। L बाय ए इज कैलकुलेटेड। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा था ना, वो सॉल्यूशन निकाल दिया, और स्टेप 2 के अंदर तुमने वो सॉल्यूशन डाला जिसका कंडक्टिविटी तुमको कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, पुट द सॉल्यूशन इन द सेल whose conductivity is to be calculated। तुमने यही प्रोसेस दोबारा किया, ये रियोस्टैट है जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी नोन है, बट इस सेल के अंदर तुमने वो सॉल्यूशन डाला जिस सॉल्यूशन का तुमको कंडक्टिविटी चाहिए, गेटिंग इट? हाँ। और लेट्स से एट अ डिस्टेंस L2 जॉकी शांत हो गया, मतलब ईयरफोन शांत हो गया, तो मतलब L2 डिस्टेंस पे तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल हो गया, बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारे पास हो जाएगा R डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस ले लो R3, तो R बाय R3 इज इक्वल टू L2 बाय 100 माइनस L2 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास R3 आ गया, R3 कितना आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू 100 माइनस L2 डिवाइड बाय L2। कोई डाउट? हाँ, इंटू R1 R आ गया। R3 आने के बाद R3 को तुम रो 3 इंटू L बाय ए लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 100 माइनस L2 बाय L2 इंटू R। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी हमने कैलकुलेट किया, तो तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी, बोलो हाँ या ना? हाँ। This is how you calculate conductivity for a particular solution। ठीक है, जेईई एडवांस के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलते हैं कि इन स्टेप 1 वी हैव यूज्ड अ सॉल्यूशन, तो उसका हमें L बाय ए इतना मिला, निकालना पड़ेगा तुमको वो L बाय ए, ठीक है, और उसी L बाय ए से तुम्हें दूसरे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। अब वो जो प्रिंसिपल यूज होगा, वो कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का। गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. ग्रेट, डन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, देखो यार, प्राइमरी स्टैंडर्ड तो तुमको पता है, हमने यूज किया है, इट इज नोन एज SHE,
which is known as standard hydrogen electrode. जिसका हमने E नॉट जो है वो 0 अज्यूम किया है। Got it? हमने क्या किया, SHE को यूज करके दूसरे सेल्स का भी EMF निकाला और उन सेल्स को सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं, उनको भी यूज किया जाता है दूसरे सेल्स का EMF निकालने के लिए। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड तुम्हारे कैलोमल सेल्स होते हैं। कैलोमल सेल्स होते हैं। कैलोमल सेल्स क्या है, Hg लिक्विड होता है, उसके अंदर Hg2Cl2 प्रेजेंट रहता है, ठीक है, in the presence of KCl is a metal in sparingly soluble salt and its common ion electrode बोलते हैं। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो उसे डेसीमोलर बोला जाता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो उसे मोलर स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर 0.1 नॉर्मल है तो डेसी नॉर्मल बोला जाता है। बट इस सेल को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। इतना बताना था तुमको और कुछ नहीं। गॉट इट? अंडरस्टूड? Yes. चलो डन। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है हाँ ना। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक, क्या नाम है उस चैप्टर का, क्या कहते हैं उसको, अल्काइल हैलाइड शुरू करेंगे। सर अभी आप एक फिजिकल का ही चैप्टर करो ना। अभी आप फिजिकल ऑर्गेनिक करते हो तो फिर ट्रैक में नहीं रहता। मतलब अभी इलेक्ट्रोकेम का ही कंटिन्यूएशन वाला चैप्टर कर दो ना, फिर 2 ऑर्गेनिक के कर देना। यस, फिजिकल खत्म हो गया ना, और कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बचा तुम्हारा? हो गया फिजिकल। हाँ, बचा क्या? ठीक है। बता ना, तुम्हारे स्पेस में क्या स्टार्ट किया है? मुझे नहीं पता, मैं बहुत टाइम से बैठा नहीं हूँ क्लास में। ठीक है, अमर कहाँ? तेरा यहाँ पे आता था। अमर का, अमर, अमर हाँ ना मिल रहा भाई तू। सर्च करो, सर्च का ऑप्शन होता है। ऊपर है। अमर, अमर है सूरी, ना? यही है ना? हाँ श्योर। तो आप भेज दो ना, अगर मेरे को नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। नहीं, यही है। हाँ 10 तक गिनो। हो गया, 5 देख सेकंड में।
सर आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो प्लीज ये क्लास का? किस क्लास का? इस क्लास का ना?